Good morning, class 10th. Welcome back to Path Online Classes. Students, today we will continue with chapter number 6 of analyzing data in spreadsheets. Students, we are using an application software that is used to create electronic spreadsheet. And the name of that software is, the name of that software is MS Excel. Okay, so we are using MS Excel to create electronic spreadsheets that are used to store data and perform calculations on the data. In last tutorial, we discussed about the consolidation of data. How to consolidate data means how to combine the data from different sources. Beta, whenever you open MS Excel, आपके पास एक वर्कबुक ओपन हो जाती है एंड बाय डिफॉल्ट देयर आर 3 शीट्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा. ओके, एंड यू कैन कंबाइन द डेटा ऑफ द डिफरेंट शीट्स टुगेदर एट वन प्लेस. ठीक है, आप डिफरेंट वर्कशीट्स के डेटा को क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो. मीन्स यू कैन कंसोलिडेट दैट डेटा विद द हेल्प ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा फीचर. ओके, दैट इज अवेलेबल इन डेटा टैब. Is it clear? Now today we will discuss another advanced feature of MS Excel that is known as what if analysis tools. Okay, now what is the meaning or what is the use of these tools? Beta, देखो, in MS Excel we store the data and we can perform calculations on the data. आपको पता है, आप calculations perform करते हो, आप formulas लगाते हो, functions apply करते हो to perform calculations on the data. What if analysis tool आपको हेल्प करता है कि अगर आपने किसी डेटा के ऊपर फॉर्मूला या फंक्शन लगाया हुआ है तो आप चेक कर सकते हो कि अगर आप उस फॉर्मूला, जिस वैल्यूज पर आपने फॉर्मूला लगाया है, अगर आप उन इनपुट वैल्यूज को चेंज करते हो तो हाउ योर आउटपुट और हाउ द आउटकम ऑफ द फॉर्मूला will change. Is it clear? Again, what if analysis is the process of changing the values in the cell to see how those changes will affect the outcome of the formula on the worksheet. Means input values को change करते जाओ and you can check कि कैसे वो input values को change होने पर आपकी output value जो फॉर्मूला प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे वो आउटपुट वैल्यू चेंज होती है. यू कैन चेक इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस टूल. सेकेंड थिंग, इट ऑल्सो हेल्प्स कि आप इनपुट वैल्यूज को चेंज नहीं करोगे. आप क्या करोगे, आप जो फॉर्मूला की आउटपुट है उसे स्पेसिफाई कर दो कि मुझे ये आउटपुट चाहिए. ओके, मीन्स यू कैन स्पेसिफाई द आउटपुट वैल्यू you can specify the result that your formula will produce. And it also determines कौन सी इनपुट वैल्यूज एक्चुअल में वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती हैं. वो भी आपका व्हाट इफ एनालिसिस टूल क्या कर सकता है, डिटरमिन कर सकता है. 2 चीजें होती हैं व्हाट इफ एनालिसिस में. आप इनपुट चेंज करो, इट विल शो यू हाउ द आउटपुट विल गेट इफेक्टेड. सेकेंड, आप आउटपुट को चेंज करो, इट विल डिटरमिन द इनपुट्स फॉर दैट आउटपुट. Is it clear? In this way, what if analysis tools help you. हाँ जी, there are basically 4 what if analysis tools. हम 4 tools discuss करेंगे one by one. Today we will discuss the very first one tool, that is scenario manager. ठीक है, what if analysis tools are divided into 4 parts. The very first one is your scenario manager, second is goal seek, third is data table, and fourth is solver. Okay, 4 types of what if analysis tools are available in MS Excel. So today we will start with scenario manager. आज हम scenario manager से start करेंगे. Now what is the use or what is the feature of scenario manager? बच्चे, first of all we will discuss what is the meaning of scenario. Scenario means a set of values that you enter in a worksheet to perform calculations. Scenario किसको बोलते हो आप, set of values जो आप एंटर करते हो एट ए टाइम टू परफॉर्म द कैलकुलेशन, दैट इज नोन एज वन सिनेरियो.
एक सेट ऑफ वैल्यूज को आपने फर्स्ट सिनेरियो बोल दिया, जब आप उसी में सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज दोगे दैट इज अनदर सिनेरियो. ठीक है. सो सिनेरियो मीन्स अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट यू एंटर इन अ वर्कशीट टू परफॉर्म कैलकुलेशंस. सेकंड, अब ये सिनेरियो मैनेजर क्या करता है? सिनेरियो मैनेजर अलाउज यू टू चेंज और सब्स्टिट्यूट इनपुट वैल्यूज फॉर मल्टीपल सेल्स. ठीक है. आप क्या करो, आप चेंज करो इनपुट वैल्यूज को. ठीक है. इट विल शो यू एंड यू कैन व्यू हाउ डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट इनपुट्स इफेक्ट योर आउटपुट. ठीक है. मीन्स यू कैन चेक, यू कैन गिव एट ए टाइम डिफरेंट इनपुट वैल्यूज. या आप ये भी कह सकते हो कि आप अपनी आउटपुट को चेक कर सकते हो डिफरेंट इनपुट्स के लिए. ठीक है. आपने मल्टीपल इनपुट्स दी सेम फॉर्मूला के लिए. ठीक है. एंड यू कैन चेक कि कैसे आपकी आउटपुट चेंज हो रही है. Is it clear? Now the third thing is what if analysis in Excel allows you to try out different values for the formula. Is it clear? Means आप एक ही फॉर्मूलाज के लिए, एक ही फॉर्मूला के लिए डिफरेंट इनपुट्स प्रोवाइड करो एंड यू कैन चेक हाउ डिफरेंट इनपुट वैल्यूज विल इफेक्ट योर आउटपुट. दैट आर द डिफरेंट सिनेरियोज. Is it clear? Let us understand the concept of scenario manager with the help of an example. ठीक है. For this we have to open an Excel workbook. ठीक है. हमने एक Excel workbook ओपन कर ली, नेम दे दिया इसको सिनेरियो. ओके. वर्कबुक को नेम दे दिया, आपने रीनेम कर दिया सिनेरियो से. नाउ आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड सम डेटा इन दिस वर्कशीट. ठीक है. बाय डिफॉल्ट देयर आर 3 शीट्स. मैंने शीट 1 पर कुछ डेटा एंटर कर लिया टू शो द फीचर और टू शो हाउ सिनेरियो मैनेजर विल वर्क. हाँ जी, कैसे सिनेरियो मैनेजर वर्क करेगा उसको दिखाने के लिए हमने कुछ डेटा एंटर कर लिया है. नाउ दिस डेटा इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज. ठीक है. देयर आर 4 एम्प्लॉयज. हमने ऑलरेडी 4 एम्प्लॉयज का डेटा लिया है और हमने लिया है कि मई मंथ में इन एम्प्लॉयज ने कितनी सेल की है. ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एम्प्लॉय नेम इज रवि और इसकी मई मंथ की सेल है 15,500 रुपीज. अभय, कृष्ण, हर्ष, 4 एम्प्लॉयज आर देयर और इनकी सेल ले ली है हमने मई मंथ की. ओके. अब हम क्या करते हैं, इनका टोटल फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में टोटल सेल कितनी हुई है मई मंथ की. आपको पता है यू कैन अप्लाई द फॉर्मूलाज इन एक्सेल. एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लगाओगे बेटा? आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हो. यस, दीज आर द फंक्शंस. आपको पता है जब आप इनबिल्ट फॉर्मूलाज को यूज करते हो दैट आर कॉल्ड फंक्शन. हम यहाँ पर फॉर्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ पर फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई अ फंक्शन दैट इज नेम एज सम टू कैलकुलेट द टोटल सेल ऑफ मई मंथ. ठीक है. आप यू नो हाउ टू कैलकुलेट द हाउ टू कैलकुलेट द टोटल. उसके लिए आपको रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी. बच्चे ये चीज़ें हमने 9th क्लास में डिस्कस की हुई हैं. ओके. नाउ इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द टोटल सेल ऑफ मई मंथ. अब मुझे एक्चुअली क्या करना है, आई वॉन्ट टू चेक फॉर द वेरियस इनपुट्स. मुझे डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करने हैं. ये तो एक सिनेरियो है दैट इज फॉर द मई मंथ. ओके. ये कुछ इनपुट वैल्यूज दी हैं आपने. ओके. आई वॉन्ट टू प्रिडिक्ट कि मैं कहती हूँ कि जून में, जुलाई में अगर ये पर्सन कितनी सेल करे कि मेरा टारगेट अचीव हो जाए. ओके. मीन्स आई वॉन्ट टू चेक फॉर द अनदर सिनेरियो. ठीक. तो आप डिफरेंट इनपुट वैल्यूज के लिए अपनी आउटपुट को चेक कर सकते हो. फॉर दिस कैसे करोगे? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द डेटा टैब. हाँ जी. नेक्स्ट इज क्लिक ऑन what if analysis tools from data tools group. Okay. Click on data tab. Now click on what if analysis command. हाँ जी. Click on the what if analysis from data tools and select here scenario manager. The very first one. Yes, first one what if analysis tool is your scenario manager. When you click on this scenario manager, a scenario manager dialog box will get
open. Now you can add different scenarios here. आप जितने भी चाहे उतनी ही इनपुट वैल्यूज के सेट को चेक कर सकते हो. ओके, उसके लिए आपको सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा. फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द ऐड टैब. ठीक है, ऐड टैब पर क्लिक कीजिए. नाउ गिव द सिनेरियो नेम टू द सिनेरियो. जो आप सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज देना चाहते हो उसका एक नेम रख लो. सपोज आपने ये जो डेटा ऑलरेडी शीट के ऊपर एंटर किया हुआ है दैट इज फॉर द मई मंथ, मैं नेक्स्ट जून मंथ के लिए कर रही हूँ, तो मैंने नेक्स्ट सिनेरियो को नेम दे दिया जून. ओके, नाउ व्हाट यू वांट टू चेंज. आप किसको चेंज करना चाहते हो बेटा? यू वांट टू चेंज द सेल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज. आप एम्प्लॉयज की क्या करना चाहते हो बेटा? सेल को चेंज करके देखना चाहते हो. तो changing cell, next option is your changing cell. For this you have to click here and you have to select the range of the cells that you want to change. और जो इनपुट वैल्यूज आप नेक्स्ट सिनेरियो के लिए चेंज करते हो आपको उसके रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, मैंने ये एक एब्सोल्यूट रेंज सेलेक्ट कर दी बेटा. जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, आपको भी पता है एक आपके पास रिलेटिव एड्रेस होता है, एक एब्सोल्यूट एड्रेस होता है. नाउ एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा? नाउ द सेल, द वेरी फर्स्ट वन नेम ऑफ द सेल ऑफ दिस रेंज इज D6. दैट इज बिकॉज दैट इज एन एब्सोल्यूट एड्रेस. तो कैसे लिखा जाएगा? $D $6 to $D $9. ओके, नाउ अगेन क्लिक हेयर. हाँ जी, आप किन सेल्स को चेंज करना चाहते हो? आई वॉन्ट टू चेंज फ्रॉम D6 टू D9. ओके, अब नेक्स्ट इज हाउ यू वॉन्ट टू चेंज. आप कैसे चेंज करना चाहते हो? ओके ओके, व्हाट यू वॉन्ट टू चेंज. अब नेक्स्ट यू हैव टू स्पेसिफाई द नेक्स्ट सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज. अभी पहली बार में आपकी इनपुट वैल्यूज ये हैं. अब सपोज मुझे फर्स्ट सेल यानी कि D6 की वैल्यूज को चेंज करना है. रवि की नेक्स्ट मंथ की सेल आई वांट कि मुझे चेक करना है कि मेरी टोटल सेल कितनी होगी अगर रवि नेक्स्ट मंथ में सेल करता है 17,000 रुपीज की. ओके, और नेक्स्ट अभय ने सेल की है इस मंथ के लिए, मई मंथ के लिए 19,800. आई वांट टू चेंज इट फ्रॉम टू 20,000. ओके, नेक्स्ट कृष्ण की सेल को चेंज कर दिया हमने फ्रॉम 23 टू 25,500. ओके, और हर्ष की सेल को चेंज कर दिया हमने 26,000. ओके, नाउ क्लिक ऑन ओके. जैसे ही आपने ओके किया, आपने एक सिनेरियो ऐड कर दिया. यू कैन ऑल्सो गिव एनी कमेंट. अगर आप कमेंट देना चाहते हो तो यू कैन गिव द कमेंट कि किसने ये चेंज किया है. ओके, देयर इज नो कंपल्शन, दिस इज ऑप्शनल. ओके, मैंने एक सिनेरियो नेक्स्ट इनपुट वैल्यूज के लिए एक सिनेरियो ऐड कर दिया. नाउ यू कैन ऐड एन अनदर सिनेरियो. एक बार और करते हैं जून, नेक्स्ट हम करते हैं जुलाई मंथ के लिए. ओके, जुलाई बाय चेंजिंग द सेल D6 टू D9 ऑलरेडी सेलेक्टेड है आपके पास. नेक्स्ट इज comment. Do you want to give any comment? You can give. Okay, next is okay. Click on OK and here give another set of input values. Okay, by changing, मैंने इसको चेंज कर दिया 18,000 से फर्स्ट रवि की सेल को. नेक्स्ट इज 21,000. ओके, नेक्स्ट सेल इज 24,500 एंड नेक्स्ट चेंज कर दिया हमने टू 26,000. नाउ इट विल शो यू अ कंप्लीट डेटा. जो भी आपने ये किया है आपको सारी आउटपुट दिखाएगा. नाउ क्लिक ऑन ओके. हाँ जी, वी हैव ऑलरेडी एडिड 2 सिनेरियो. One is for the June month and second is for the July month. If you want to delete any scenario, you can just select that scenario and click on this delete option. That scenario will get deleted. If you want to make any changes in the already stored scenario, you can edit. Just click on that scenario and you can edit it. Okay. Now the next thing is what you have to do. Now to check
द आउटपुट ऑफ द वेरियस इनपुट्स, जो आपने डिफरेंट सिनारियोज क्रिएट किए हैं उन सब की आपको एक साथ आउटपुट देखनी है कि कैसे ये डिफरेंट आउटपुट्स आपके फॉर्मूला या आपके टोटल को इफेक्ट कर रहे हैं. फॉर दिस क्लिक ऑन समरी, ओके, फ्रॉम द सिनारियो मैनेजर डायलॉग बॉक्स. जैसे ही आप समरी पे क्लिक करोगे, यस, रिपोर्ट टाइप सिनेरियो आई नीड सिनेरियो समरी, जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे बेटा एक कंप्लीट सिनेरियो दे देगा आपको, एक कंप्लीट जो भी आपने गिवन इनपुट्स दिए हैं. देखो आपने 3 मंथ्स की सेल चेक की थी बाय चेंजिंग द इनपुट वैल्यूज. फर्स्ट हमने करंट वैल्यूज दी थी by changing the cell D6, D7, D8, D9. These are the absolute addresses. आपने जो करंट वैल्यूज दी थी उसके अकॉर्डिंग जो टोटल सेल आई थी दैट इज 82,800. जब हमने डिफरेंट इनपुट्स दी अकॉर्डिंग टू जून मंथ, आपकी टोटल सेल हो गई 88,500. एंड फॉर जुलाई मंथ अगर आपने डिफरेंट वैल्यूज दी हैं तो उसके लिए जो आउटपुट आ रही है दैट इज 89,500. मीन्स आप डिफरेंट इनपुट्स के लिए कैसे आपका फॉर्मूला डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस करता है फॉर डिफरेंट इनपुट वैल्यूज. यू कैन चेक इट विद द हेल्प ऑफ सिनेरियो मैनेजर. स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर हाउ सिनेरियो मैनेजर विल वर्क? सिनेरियो मीन्स the set of different input values. Is it clear? So students, practice this concept